Hello everyone. In the last lecture we have studied the basics of Maxwell equation, Faraday's laws and Lenz's law, but there was no audio, so I will again just tell you the brief introduction and the basics. So first of all I will tell you that in the EMT syllabus electrostatic and magnetostatic part is removed now. So there is no need to study electrostatic and magnetostatic part, but we need to see little basics. So let's suppose the electric field and the magnetic field is denoted in the static field. In a static field what happen? It does not change according to time. मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, तो इट चेंज अकॉर्डिंग टू स्पेस, डिस्टेंस and direction. Okay, this is called static field. In a static field our field change with respect to space, distance and direction, but it does not change with respect to time. But in time varying field the electric field and magnetic field change with respect to space, distance, direction and time also. Okay, so this is called as time varying. So we already saw the Maxwell equation in time varying and static field, but then also because last lecture was little muted, I don't know what was the problem, but it's okay. Now again today we will see Maxwell equation. So see, this time in the syllabus the static part is removed, so this time we will see in the time varying field Maxwell equation. In we will see the both and we will see what is the changes. Maxwell equation in time varying field. Okay, so our first equation that remains same in the time varying or static. Okay, that is surface integral of d dot ds. What is d? D is equal to epsilon into electric field. Okay, so d dot ds, that is equal to charge q. This is the integral form. I will write here. क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, हमें इंटीग्रल फॉर्म पे भी क्वेश्चन बेस्ड रहता है एंड डिफरेंशियल फॉर्म पे भी. मैक्सवेल इक्वेशन का दोनों फॉर्म है. ओके, so the our first equation of Maxwell in the differential form can be written as del dot D is equal to rho V. Okay, तो ये हमारा कैसे आया एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ऑलरेडी हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है कि जब भी हमारा यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है d डॉट डी एस, इसको हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट डी डी वी, और चार्ज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ चार्ज डेंसिटी इंटू डी वी. ये हमारा कट जाएगा और डी वी चला जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी. तो ये हमारा हो गया इन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन. ओके, तो ये सब बेसिक चीजें जो हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ रखी है, तो एक बार आप लोग मैथ्स का लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि दोबारा पढ़ाने से टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए अभी उसको हम लोग स्किप कर रहे हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्चुअली ये तो हमारा जीरो होता है इन द स्टैटिक फील्ड, बट यहाँ पे हमारा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस del b by del t dot ds and
डिफरेंशियल फॉर्म में क्या होगा, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाय डेल टी। बी क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और एक और बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये हमारा स्टैटिक फील्ड है, इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। तो दिस इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, इक्वेशन 2 जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इन द स्टैटिक फील्ड ई डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू 0 हो जाता है एंड डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ओके, नाउ कमिंग टू द मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। In Maxwell third equation, that is surface integral of magnetic field. If a circle is there, this is a closed surface is there, so that will be equal to 0 and del dot B is equal to 0. So this equation remains unchanged even in the static field. Okay, और मैंने कल के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि कैसे टाइम वेरिंग फील्ड में ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बट अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक बार कर चुका हूँ, लेकिन लास्ट लेक्चर म्यूटेड था, तो आप लोग थोड़ा सा लेंज लो और फ्राइडेज लॉ देख लेना एक बार। फोर्थ इक्वेशन जो है हमारा, वो है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच डॉट डी एल। ये वैसे आई होता है, बट यहाँ पे टाइम वेरिंग में आई सी प्लस आई डी। आई डी क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, आई सी क्या है कंडक्शन करंट है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और इसका जो है सो डिफरेंशियल फॉर्म होगा डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे सी प्लस जे डी, दैट इज जे सी इज द करंट इंटेंसिटी। ओके, और ये जो है हमारा स्टैटिक फील्ड में थोड़ा सा चेंज्ड है। चेंज क्या है, एच डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू आई and del cross H that is equal to J. So this is the Maxwell equation in X static field, और लेफ्ट साइड में क्या है मैक्सवेल इक्वेशन इन टाइम वेरिंग फील्ड। ये हम लोग कल ही पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार फिर से देख लिए। ओके, तो मैक्सवेल इक्वेशन हमें हमेशा रटा होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जाम में अच्छा करना है तो। और एक बात मैं ये बता देता हूं कि हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन भी एक बार देख सकते हैं, लेकिन वो आगे देख लेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ EM waves and propagation in the material। ओके, तो जनरली क्वेश्चन इस बार यहीं से आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो सिलेबस से हटा दी गई है। तो इस बार जो है तो EM वेव्स से एक क्वेश्चन जरूर आएगी। EM वेव्स प्रोपेगेशन इन मटेरियल्स। ओके, तो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है कंडक्टिविटी, परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके, तो डिफरेंट काइंड ऑफ EM वेव्स होते हैं बेस्ड ऑन द स्पेक्ट्रम। ओके, सो लेट्स सी EM वेव्स बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मीन्स उसके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारा EM वेव्स का कुछ नेमिंग है। जैसे कि अगर फ्रीक्वेंसी अगर हर्ट्ज या किलो हर्ट्ज में हो तो उसको हम लोग ऑडियो फ्रीक्वेंसी वेव बोलते हैं। ओके,
इसे बेसिक टर्म में एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट फिर भी यहाँ बेसिक है तो थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। मेगा हर्ट्ज के सिग्नल को हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स बोलते हैं। ओके, अप टू दिस क्लियर। एंड गीगा हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को माइक्रोवेव्स बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी जो हमारा 5G 4G पे जो रिसर्च चल रहा है 5G एंड 6G पे, वो गीगा हर्ट्ज पे ही चल रहा है। सो एंड दिस वी विल स्टडी ऑल्सो माइक्रोवेव इन आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिलेबस ऑल्सो। एंड द वेव्स हैविंग frequency component in 10 to the power 14 hertz is known as ultraviolet or infrared rays. Okay, ये सब बेसिक से आप लोग पढ़े होंगे। 10 to the power 15 to 10 to the power 18 के रेंज में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे एक्स रेज एंड गामा रेज बोलते हैं। ओके, एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंसी जैसे कि 10 to the power 20 to 10 to the power 25 हर्ट्ज, इतना बड़ा अगर इतना हाई फ्रीक्वेंसी हो तो इसको हम लोग कॉस्मिक रेज बोलते हैं। ओके, सो नाउ हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन को यूज में लेके हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन जो है हमारा, एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड्स ओके नॉट कमिंग, it's okay. So you already must have written the Maxwell laws. So using Maxwell's equation हम लोग क्या करेंगे, वेव का प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। ओके, तो हमारा डेल क्रॉस एच जो था वो क्या था, जेसी प्लस जेडी। ओके, सो this was our del cross H. So we can write the conduction JC as sigma into E. You know that current intensity can be written as conductivity into electric field, and this JD can be written as epsilon del E by del T. Actually this is our del D by del T. I have already taught in the previous lecture, but that was muted. How del cross H is this sigma E plus del D by del T. If you want me to teach now, that also I can do, but it will go a little lengthy. It's okay, let it be up to here. Just write, you just understand how we write conduction current and displacement current. Displacement current can be written as del D by del T, and D can be written as epsilon into electric field. So these are the basic formula you need to keep in your mind. Okay, so this is our first thing, and second thing is one more equation we wrote in Maxwell, del cross E is equal to minus del B by del T. तो हमारा B क्या होता है, B is equal to mu into H. ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस म्यू del H by del T. So up to this clear. तो अब हम लोग क्या करेंगे, हार्मोनिक वे में इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी. ओके, जस्ट रिमेंबर इट. एंड मैग्नेटिक वेव को एच नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी. ओके, तो अब देखो हमारा डेल क्रॉस एच जो है, सो दैट इज इक्वल टू सिग्मा ई प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी. तो ई को हम लोग क्या लिखेंगे, ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी. तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी. इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेव का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, सून यू विल नो. एंड प्लस
if you write E is equal to E naught e to the power j omega t and we need to differentiate, so we will get E j omega will come here, j omega E naught e to the power j omega t. How it comes I will tell you. E डेल E को क्या लिखे हम लोगों ने, E नॉट e टू पावर j ओमेगा t बाई डेल टी. तो ये क्या आ गया, एप्सिलॉन E नॉट कांस्टेंट है, बाहर चला गया, डिफरेंशिएट किए डेल e टू पावर j ओमेगा t बाई dt को, तो j ओमेगा आ गया एंड e टू द पावर j ओमेगा t. ओके, अप टू दिस क्लियर. तो हमारा ये इक्वेशन आ गया डेल क्रॉस एच का. अब यहाँ पे क्या है, अगर डेल क्रॉस एच में हम लोग सिग्मा कॉमन ले लेते हैं एंड मीन्स ई नॉट ई टू पावर जे ओमेगा टी अगर कॉमन लेते हैं तो सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन इंटू ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी आ जाएगा. दैट वी कैन राइट सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई दैट इज एप्सिलॉन एंड ई नॉट ई टू पावर जे ओमेगा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, ES or E, whatever you write here, E or H. Okay. So this is done. And one more thing, similarly for this del cross E, when you will differentiate, if you will keep H is equal to H naught e to the power j omega, then you will get del cross E that is equal to minus mu j ओमेगा h नॉट e टू द पावर j ओमेगा t. यहाँ पे आप लोग क्या करो, h का h नॉट इंटू e टू पावर j ओमेगा t डाल दो, डिफरेंशिएट कर दो, ये आ जाएगा. फिर इसका हम इसको लिख सकते हैं माइनस म्यू j ओमेगा h नॉट e टू द पावर j ओमेगा t को क्या लिख देंगे, सिंपली h. तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 2 है. ओके, अप टू दिस के लिए अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लाइव चैट में आप पूछ सकते हो. एंड आवर इक्वेशन 1 and 2, this have some significant. I will write it again. Del cross H that is equal to sigma plus j omega epsilon into E हुआ, this is our equation 1, and del cross E that is equal to minus j omega mu h, this is our equation 2. so 1 and 2 क्या है हमारा, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम हार्मोनिक सोर्सेस. ये हम लोग टाइम वेरिंग फील्ड का पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये इक्वेशन हम लोगों ने डिराइव किया. मैक्सवेल इक्वेशन फॉर सी, अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे, देखो अभी तो टफ लग रहा होगा, लेकिन इस पे जब प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग को ये फॉर्मूला बाय हार्ट हो जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है कोई भी फॉर्मूला को. ओके, अप टू दिस क्लियर. So this is the Maxwell's equation for time harmonic sources. Now what we will do, इसमें से देखो हमारा h का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस E बाई माइनस जे ओमेगा म्यू, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ओके, मैं डिराइव भी कर रहा हूं, आगे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला आएगा, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टेक h फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड कीप इन इक्वेशन 1. व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट डेल क्रॉस h हमारा क्या है, डेल क्रॉस E डिवाइडेड बाय माइनस जे ओमेगा म्यू that is equal to sigma plus j omega epsilon into E. ओके, यहाँ तक हो गया. अब डेल क्रॉस E हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट E माइनस डेल स्क्वायर E. ओके, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमारा, और माइनस जे ओमेगा म्यू को उस साइड ले जाएंगे, दैट इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई. ये तो हमारा टाइम वेरिंग फील्ड के लिए है, लेकिन अगर स्टैटिक फील्ड है, अगर मान ले
और या फिर अगर चार्ज फ्री स्टेबल मटेरियल है, मीन्स फॉर चार्ज फ्री स्टेबल मटेरियल, अगर चार्ज है नहीं तो गॉस लॉ के थ्रू हम लोग जानते हैं डेल डॉट ई इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो वी कैन सिंपली राइट दिस माइनस माइनस विल गेट कैंसिल, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा म्यू, sorry this minus will also get cancelled, so j omega mu sigma plus j omega epsilon into e, ये हमारा जो आ गया इक्वेशन आ गया। सिमिलरली हम लोग h के लिए भी फाइंड करेंगे, इसमें क्या करेंगे, आप e के टर्म को इसमें डाल दो, यहाँ पे e का वैल्यू ले लो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 में डाल दो, तो हमारा डेल स्क्वायर h आ जाएगा सब्स्टिट्यूट करने पे। ये भी हमारा j ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई इंटू एच, इससे हम लोग इम्पीडेंस भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन हर बार गेट में आती है। मैं आपको आगे बताऊंगा जब फाइंड करना होगा, अभी तो ये हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, इम्पीडेंस क्या होता है हमारा ई बाई एच, तो हमारा ये टर्म जो है सो इम्पीडेंस हो जाएगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, तो इसका अभी टेंशन मत लो। तो अब देखो, ये हमारा एक तरह से वेव इक्वेशन भी है, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको आप लोग बाय हार्ट रिमेंबर कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो अब देखो, ये जो टर्म है हमारा जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा ई, इसको अगर हम लोग मान ले गामा स्क्वायर मान लेते हैं, तो यहाँ पे अंडर रूट करने पे जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन, दिस विल बी इक्वल टू हमारा गामा, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट। तो हमारा जो ये इक्वेशन है ये कैसा बन जाएगा, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई। ओके, सो दिस इज द wave equation, this can be called as wave equation। एंड हमारा यहाँ पे गामा क्या है मैं आगे बताता हूँ, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर गामा स्क्वायर ई को अगर इस साइड ले आते हैं, तो देखो, तो हमारा क्या इक्वेशन बन गया था, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, I don't know today why we are not able to do the previous slide। हाँ सी, डेल स्क्वायर ई इक्वल टू गामा स्क्वायर ई है, तब इसको हम इस साइड लाते हैं, और देखो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो इसका कंपोनेंट होता है ई एक्स, ई वाई, ई जेड, एच भी है, सॉरी एच एक्स, एच वाई एंड एच जेड, इसका हर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स होता है, तो हम लोग कंपोनेंट्स ब्रेक करके भी पढ़ने में आसानी होता है। तो अब देखो, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू गामा स्क्वायर ई है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर ई एक्स बाई डेल जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर ई एक्स इज इक्वल टू 0, और डेल स्क्वायर एच वाई बाई डेल जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर एच वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ई एक्स और एच वाई क्यों लिए, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में है एंड वाई एंड जेड डायरेक्शन में ये 0 है, क्योंकि ईएम वेव का एक प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड and direction of propagation and wave direction are perpendicular to each other। okay, perpendicular to each other। तो यहाँ पे देखो, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड y डायरेक्शन में लेते हैं,
क्योंकि x डायरेक्शन में देन h 0 होगा, क्योंकि हमेशा E and H will be perpendicular and wave will propagate in z direction. So this is clear. So wave will always propagate in z direction. So we can also write the equation. I am directly writing the final equation, क्योंकि देखो इसका लंबा डेरिवेशन है, 2 पेज का डेरिवेशन है, कोई जरूरत नहीं है उतना टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि एग्जाम में गेट एग्जाम में ऑल क्वेश्चंस आर न्यूमेरिकल. सो द फाइनल E by H equation is given as, and this is equation is very important, that is electric field, wave is propagating in z direction with respect to time and electric field is in the x direction. This way we are representing. हर बुक में रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है. यहाँ पे x क्या हो गया हमारा, E field, वेव का डायरेक्शन एंड दिस इज टाइम. ओके, तो अभी हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स दिखने में लगेगा. तो इस तरह से हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट किया है. दैट विल बी गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या, ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी मल्टीप्लाइड एप्सिलॉन या ई टू द पावर माइनस गामा जेड. सो वेव इज इन द जेड डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द AX डायरेक्शन. ओके, सेम मैग्नेटिक के लिए क्या होगा, H यहाँ पे क्या लिखेंगे, Z, T. ओके, क्योंकि वेव जो है वो हमारा Z में फिक्स है, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड X में, वेव Z में, तो H Y में होगा. एंड यहाँ पे H नॉट e टू द पावर j ओमेगा t, वेव का डायरेक्शन फिक्स है, e टू द पावर माइनस गामा z, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन द y डायरेक्शन. तो AY हम लोगों ने लिखा है. सो जस्ट राइट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट. EM wave is the product solution of time and harmonic spaces. Sorry, space harmonics. इसको ग्राफ पे अगर हम लोग देखें, ये अगर हमारा x डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो x डायरेक्शन में होगा, E फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा y डायरेक्शन में होगा, and it will propagate in the z direction. Okay, this is the propagation of direction, okay, of the EM wave. And see, EM wave का जो हमने लिखा e to the minus gamma z, so while propagating it will decay. When z value will increase, it will decay like this. Okay, so it will go, the curve will go like this. Understood? Because see यहाँ पे क्या है, हमारा e to the power minus gamma z है, so when z increases the EM wave intensity will decrease. Okay, up to this clear? नेक्स्ट थिंग, हम लोगों ने गामा को क्या माना था, अंडर रूट जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन. ओके, ये हम लोगों ने सपोज किया था. तो यहाँ पे हमारा गामा जो है दैट इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट. तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा. अल्फा जो है हमारा
ये हो गया एम्पलीट्यूड डीके, ओके, एंड बीटा इज फेज शिफ्ट रेट। ओके, so up to this clear. And once again, you should not feel difficulty. So I'm again writing the wave equation now in terms of alpha and beta. ओके देखो यहाँ पे क्या था, हमारा गामा था, तो गामा को क्या लिख देंगे अब, अल्फा प्लस जे बीटा। ओके, सो गामा इजकल टू अल्फा प्लस जे बीटा लिखने के बाद हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आएगा दैट इज इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ई टू द पावर माइनस गामा जेड था, तो यहाँ पे माइनस अल्फा जेड इंटू ई टू द पावर माइनस जे बीटा जेड। अल्फा क्या है, डीके एम्पलीट्यूड डीके कांस्टेंट, एंड बीटा है फेज शिफ्ट रेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन। सो वी कैन राइट इट एज ई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड, इसको एक साथ ले आएंगे, एंड यहाँ पे हम लोग जे कॉमन ले लेंगे, दैट इज ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, ओके, मल्टीप्लाइड विथ ए एक्स। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो वेव इक्वेशन लिखेंगे दैट इज एच जेड टी वाई, यहाँ पे एच नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड आप डाल देना इस इक्वेशन में। बस आपको क्या करना है ना, यहाँ पे गामा की वैल्यू अल्फा प्लस जे बीटा डालना है, एच नॉट ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड, और जे कॉमन लेने पे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। अगर यहाँ पे माइनस बीटा जेड है तो वेव का प्रोपेगेशन डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग है, अगर यहाँ पे प्लस बीटा जेड होगा तो इट विल प्रोपोगेट अलोंग निगेटिव ऑफ जेड एक्सिस। ओके, अब इसमें हमारा दिस टर्म इज एम्पलीट्यूड, ओके, दैट इज कांस्टेंट टर्म एंड इट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू जेड, मीन्स जब जब जेड बढ़ते जाएगा एम्पलीट्यूड हमारा डिके होते जाएगा, लाइक दिस ग्राफ। I don't know today why it is not going to the back slide, like when z is increasing this is decreasing, understood? So this omega t minus beta z, this is harmonic phase. Why it is phase? देखो e की पावर j थीटा हमेशा ये हमारा फेज हो जाएगा, और ये ay जो है ये हमारा फील्ड डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। यहाँ पे अगर माइनस साइन है एंड जेड है देन वेव डायरेक्शन इज, वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव जेड एक्सिस। यहाँ पे अगर प्लस साइन होता तो निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग वेव प्रोपोगेट हमारा कर रहा होता। तब देखो इस इक्वेशन से हम हमारा 3 नोट पॉइंट है, दैट इज फर्स्ट, एम्पलीट्यूड जो है सो एक्सपोनेंशियल डिके कर रहा है हमारा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस अल्फा जेड है, तो दिस मीन्स एम्पलीट्यूड exponentially decay and alpha is the rate of decay, so this alpha is known as attenuation constant. Okay, second one is electric field direction cross product magnetic field direction gives our propagation direction. ओके, अगर देखो x क्रॉस y है तो हम लोग राइट हैंड रूल लगाएंगे,
x क्रॉस y इज इक्वल टू z। ओके, अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस एक्स है और मैग्नेटिक फील्ड y है तो क्या होगा, जल्दी से बताओ। राइट हैंड कर्ल करो फ्रॉम माइनस एक्स टू y, सो वी विल गेट हियर माइनस z। अगर x क्रॉस माइनस y है तो क्या होगा, x cross minus y, so again this will be minus z। okay, and minus x cross minus y है तो रिवर्स में राइट हैंड कर्ल करो, माइनस एक्स से माइनस वाई तक, थंब हमारा ऊपर की ओर आ रहा है, सो अगेन दिस इज z एक्सिस। ये हमारा E फील्ड हो गया, H फील्ड हो गया एंड वेव का डायरेक्शन हो गया। So up to this clear? And the third point we can observe from this e to the power j omega t minus z, यहाँ पर अगर e to the power j ओमेगा टी माइनस बीटा जेड है, सो यहाँ पे निगेटिव साइन है तो दिस इज फॉरवर्ड इन स्पेस। अगर पॉजिटिव साइन होता तो निगेटिव जेड डायरेक्शन होता, मींस बैकवर्ड इन स्पेस। ये फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है वेव का। ओके, सो अप टू दिस इट इज क्लियर। So let's stop today here only, because in the next lecture we will study for the lossless material and everything will study intrinsic wave impedance। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो है थोड़ा फास्ट चलने से क्या होता है ना, समझ में कम आता है, इसीलिए हम लोग अभी स्लो स्लो चलेंगे। So up to this, if you have any doubt, you can ask me on WhatsApp, even you can ask in the live chat, I will reply, even in the comment box I will reply, and so there is no problem, study nicely and try to solve questions। So today I think question will be very less because we just studied the introduction. From tomorrow we will solve questions and you also try previous year question from electronics previous year gate book। okay, so thank you very much. Today we will stop here. Keep on watching the lecture and give feedback on WhatsApp or anywhere. Thank you so much. Even on the comment on the video also, how you like the lecture, what you want me to change, so that accordingly I will make lecture for you all. Thank you very much.